A very good day to all of you, my dear students. Students, you are the future of the world and you are also the pillar of the nation. So, to develop a country in the world, the future should be secure and you are the most weapons to build the nation. So, the first foundation and the first basic things are comes in mind from education. So for your better future the education is most important for all of you. So let's come to the topic. हम लोग जैसे कि हमारा चैप्टर स्टार्ट किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टुडे we will discuss about our topic uncertainty in measurements. So first of all, what is uncertainty? Uncertainty बच्चों क्या है? You can say the uncertainty is defined as doubt. Doubt क्या है? Doubt जो हम clear नहीं होते वो हमारा doubt होता है. When you tell us if you are not sure, if you want to take a new job or not, this is called uncertainty. तुम लोगों को कोई जॉब ऑफर कर रहा है, तुम सोचे हो वो जॉब को एक्सेप्ट करोगे या नहीं. That is called uncertainty. Means you are not sure about that. That is called uncertainty or you are in doubt. So there are some measurements in our chemistry that is not clearly sure. So these are the uncertainty. So today we will discuss about some measurements which are in uncertainty. So mainly there are 2 points. One is scientific notation and second one is significant figure. We will discuss about these two topics. First one is scientific notation. So what is scientific notation? बच्चों जैसे कि chemistry is the study of atoms and molecules, right, which have extremely low masses and are present in extremely large numbers. Just like ले लो हमारा Planck's constant, उसका वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10 to the power 23. इसका मतलब है 23 to 0 लगना है. स्पीड ऑफ लाइट ले लो 9 इंटू 10 to the power 8. ये सारे नंबर इतना बड़ा बड़ा होता है जो कि इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको कि हम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखते हैं. तो इसका एक फार्मूला है और यू कैन से द सिंबल m into 10 to the power m, where m is a digit or number you can say and n is the exponent having positive or negative values. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. बच्चों यहाँ पर कि 10 to the power मतलब एक्सपोनेंट का वैल्यू इतना बड़ा बड़ा आएगा 11, 23, 53, 56. इतना बड़ा बड़ा के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो मेनी जीरोस देयर इज ए रियल चैलेंज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो व्हाट आर दोस ऑपरेशंस? फॉर एग्जांपल्स एडिशन, subtraction, calculations, multiplication and divisions. So there are many types of mathematical operations are there. So by using this scientific notation we can calculate the various calculations. So first of all we have to know how to write the scientific notation. For example, in your screen there is a number 573.864. If you write in scientific notation then that will be 5.73864 into 10 to the power 2. Why it is in positive? Because the decimal number is moved toward the left side. If it is moved towards the left side and in some number digit, the real number or digit
then that will be in positive. Similarly, there is another examples 0.000924. 0. In decimal number, if there is 0 and there is no real number, then that will be in negative exponent. If we write in 9.24, then the decimal number is moved towards right side in 4 digit. So that is the -4. Let's come to the mathematical calculation. First one is for any addition and subtraction. For addition and subtraction, first we have to keep the exponent same. Next, the digit or you can say the coefficient are added or subtract according to operation. जो भी ऑपरेशन करना होगा, या फिर तुम एडिशन करना चाहते हो या फिर सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, उसी के हिसाब से हम ऑपरेशन करेंगे. लेकिन उससे पहले हमको एक चीज याद रखना है, हम लोगों को उसके एक्सपोनेंट को सेम रखना है. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दी हूँ जहां पर 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 है और एक है 10 टू द पावर 3. इन दोनों को अगर एडिशन करेंगे बच्चों तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है. तो एडिशन करने के लिए फर्स्ट रूल इज वी हैव टू कीप द एक्सपोनेंट सेम. सो इफ यू वांट टू कीप इट 4, then you have to move the decimal number, the second one 0.895, then it will be 10 to the power 4. If you want to keep it 10 to the power 3, then you have to do 66.5 into 10 to the power 3, means the decimal number will be moved towards right side. So in this way we have to keep the exponent same, then we will add according to our operation. The same rule will be applied for subtraction. First of all, you have keep the exponent same, then you will go through your mathematical operation. Next one is multiplication and division. For multiplication, we have to add the exponent, and for division we have to minus or subtract the exponent's value. In the first operation you can see that 5.6 into 10 to the power 5 into 6.9 into 10 to the power 8. If you want to multiply, then we have to add the exponent value, that is the one is contain 5 and another one is 8. So 10 to the power 5 plus 8 will be separated, and the two digit 5.6 and the 6.9 will be multiplied. In the same way you can divide. If you want to divide any two numbers, first we have to separate the exponent number, that is the 10 to the power values. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर. सो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? अगर कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं, उसका जो भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी आएगा उसका एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल डिजिट होना चाहिए, और एटलीस्ट वन शुड बी डाउटफुल डिजिट, देन दैट विल बी कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर कोई भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे डाउट कम है. इसका मतलब है वहाँ पे डाउट वाला डिजिट ही कम है. इसका मतलब है वहाँ पे स्मॉलर नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रेजेंस, मीन्स ऑल द डिजिट्स आर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर से. सो हियर इज सम रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो लेट्स कम टू फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. बच्चों जीरो को छोड़कर जितना भी डिजिट है वो सारे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है. यहाँ पे मैं लिखी हूँ 4, 6, 7. सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है, क्योंकि यहाँ पे जीरो ही नहीं है, ये सारे नॉन जीरो है. तो सेकेंड वन इज
all zeros in between non-zero are significant. अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है. यहाँ पे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर से, लेकिन उसके रूल क्या है, वो बिटवीन द नॉन जीरो होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ऑल जीरोस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ए डिजिट. एक डिजिट का राइट हैंड साइड में जितना भी जीरो है वो सारा हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट वन इज ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरो. अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो वैल्यू के पहले आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो सारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा, वो सारा नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू है. नेक्स्ट वन इज बच्चों ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. जो कि मैं अभी बोली कि अगर कोई भी जीरो राइट हैंड साइड में आ रहा है डिजिट के बाद तो वो सारे सिग्निफिकेंट है. लेकिन अगर कोई डेसिमल पॉइंट में है, जो कि सेकेंड वन का एग्जांपल अच्छे से बच्चों देखो 0.008030. देयर इज two types of zero are present. On the left hand side, the zeros that are not countable and that are not significant, and on the right hand side, इसका मतलब है 8 के बाद वाला जीरो, जो कि 8030 है. 8 के पास जो जीरो है और 3 के पास जो जीरो है, वो दोनों जीरो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. जीरो है वही सेम डिजिट है, बट देयर वर्क एंड द सिग्निफिकेंट वैल्यूज आर डिफरेंट. So there are some star points which are important you have to remember. If we talk about the non-living things, then the significant values are infinite बच्चों. For examples, there are 6 girls stand on a row. The significant figures are infinite because the value that here it is not a girl. You can take any type of non-living things. It may be trees या फिर सिलेंडर या फिर पेंसिल पेन, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यूज इनफाइनाइट में. नेक्स्ट वन इज ए नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन. जो कि मैं साइंटिफिक नोटेशन का सिंबल बताई थी m × 10⁻n. अगर उसमें कोई भी डिजिट को लिखा होगा तो वहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यू ओनली द डिजिट, नॉट द एक्सपोनेंट वैल्यू. लेट्स गो टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है उन लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होगा. जैसे कि मैं चार्टो बोली, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन. इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उनमें हमको पॉइंट आउट करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है. एक याद रखो बच्चों, जितने भी डिजिट तुम पहले लेकर उसको एडिशन करोगे उनमें से तुमको चेकआउट करना है सबसे छोटा नंबर वाला डेसिमल प्लेस कौन सा है. जो कि फर्स्ट वन में 3.621, वहां पे डेसिमल के बाद 3 तो डिजिट है. सेकेंड वन में 2.3 में ओनली 1 डेसिमल नंबर इज प्रेजेंट देयर और 1 डेसिमल प्लेस इज देयर. बट इन थर्ड वन देयर इज 2.51, मीन्स डेसिमल के बाद 2 तो डिजिट है. तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 2.3. इसका मतलब है पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर के बाद जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा ओनली 1 डिजिट होगा. तो उसका रिजल्ट जितना भी आए उनमें से तुमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है. जितना भी नंबर आए, 3, 4, 5, 6 जितने भी आए उनमें से तुमको ओनली एक डिजिट लेना है, क्योंकि वी हैव टू टेक ओनली द स्मॉलेस्ट नंबर और द लीस्ट नंबर. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब भी हम कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे, हमको वहां पे पॉइंट आउट करना है जो भी नंबर को हम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे उनमें लीस्ट नंबर और लीस्ट टर्म और लीस्ट फिगर कितना है.
जो कि यहाँ पे मैं 2.3 और 5.0 ली हूँ, मतलब कितना है 2 है। तो इसका आंसर जितना भी आए उनमें से ओनली 2 नंबर को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लेंगे। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 2.3 इंटू 56.9 3 नंबर हो जाएगा। इसको लेकर अगर मल्टीप्लाई करोगे वहां पे जितना भी आंसर आएगा वहां से तुम ओनली कितना नंबर लोगे, लिस्ट नंबर कितना है 2 है, तो तुम वहां से सिग्निफिकेंट फिगर के लिए तुम वहां से ओनली 2 ही नंबर को पिक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है? जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं या फिर कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद में वहां पे कोई नंबर आता है जो कि एक्यूरेट नहीं होते। हमेशा कोई भी कैलकुलेशन जब भी करते हैं हम बच्चों 2 चीज होता है, एक होता है प्रैक्टिकल वैल्यू और एक होता है हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है। केमिस्ट्री में 2 चीज होता है, 2 वैल्यूज होते हैं। सो उन सारे वैल्यूज में कौन सा हमारा प्रिसिशन है और कौन सा एक्यूरेसी है वो देखेंगे। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी का डेफिनेशन या फिर उनको समझने के पहले से हमको एक एग्जांपल चाहिए कि एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट, एक कोई भी चीज का कैलकुलेशन हो रहा है और उसका रिजल्ट आ गया 10.00 ग्राम, क्या है इसका थ्योरेटिकल, जो कि तुम कैलकुलेट करके निकाले हो। ठीक है। और तुम स्टूडेंट ए बी सी को तीनों को वही सेम क्वेश्चन दे दिया और रिजल्ट निकालो, तो 3 रिजल्ट आया। स्टूडेंट्स ए जो है उसका रिजल्ट आया 9.91, 9.90 एंड 9.92। स्टूडेंट बी जो है उसका रिजल्ट आया 9.99, 10.02, 9.98 एंड जो स्टूडेंट सी है उसका वैल्यूज आया 10.00 जो कि एक्यूरेट है, 9.97, 10.05। तो ये जो तीनों स्टूडेंट है इन तीनों में से किसका वैल्यू प्रिसिशन है और किसका वैल्यू एक्यूरेसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द स्टूडेंट ए वैल्यूज 9.91, 9.90, 9.92. The values are not nearly equals to 10.00, right? Or not the round of value, but the areas or the calculating values are nearly the same areas values. Means ये जो तीनों वैल्यू है ये तीनों एक एरिया का है, तो इसका वैल्यूज क्या है? प्रिसिशन है। इट्स नॉट एक्यूरेट बट इट इज प्रिसिशन। स्टूडेंट बी का वैल्यूज जो है 9.99, 10.02, 9.98, इसका भी तीनों का वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, बट these are the nearly equals or the areas which are similar to 10.00. So these values you can say the accuracy value or the accurate you can say the accuracy values. But student C gives three results 10.00, 9.97 and 10.05. These are the surface areas are totally different students. The 3 values are totally different from one another. So even if they have the accurate value, फिर भी इसको हम ना प्रिसिशन बोल सकते हैं ना एक्यूरेसी बोल सकते, क्योंकि इनके डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है इस नंबर में। तो मुझे लगता है अब तुमको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि प्रिसिशन वैल्यू क्या होता है और एक्यूरेसी वैल्यू क्या होता है। सो द आंसर इज स्टूडेंट ए का रिजल्ट जो आया वो प्रिसिशन है एंड द स्टूडेंट बी का जो रिजल्ट आया वो क्या है? एक्यूरेसी है। नेक्स्ट गोज टू द राउंड अप वैल्यू। राउंड अप वैल्यू क्या होता है बच्चों? जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं 9.99, इसको हम क्या लिखते हैं? 10। जैसे कि मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तुमको एक एग्जांपल दी थी, 1.0814 जो है उसको हम राउंड अप करके 1 लेते हैं, तो वो होता है हमारा राउंड अप वैल्यू। तो कुछ रूल्स है जिसको हम अप्लाई करके राउंड ऑफ वैल्यू निकालते हैं, जो कि फर्स्ट वन इज इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इफ इज मोर देन 5। अगर कोई भी डिजिट का लास्ट वन
5 से ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, उसके लास्ट वन जो है जितना भी नंबर्स होगा उसको 1 ऐड करके लिख लेंगे। जो कि यहाँ पे 2.418 है, इसको लास्ट डिजिट 8 है, ये 5 से ज़्यादा है तो इसीलिए हम इसको 41 को क्या लिखेंगे, एक बढ़ाने से 42 हो जाएगा। सेकेंड वन इज, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम रहा तो क्या करेंगे, इसमें इसको लास्ट डिजिट को हटाकर ये जितना भी है उतना ही रख लेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए अगर ये 5 से कम रहा तो। इफ द राइटमोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, अगर बच्चों लास्ट डिजिट 5 ही रहा तो क्या करेंगे, तो सेकेंड वाला को देखेंगे। अगर सेकेंड वाला इवन रहा तो उसको 5 को हटाकर इवन को इवन ही लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 के पास वाला डिजिट लेफ्ट हैंड साइड वाला वो ऑड रहा तो क्या करेंगे, उसमें एक प्लस करेंगे, 1 प्लस करके उसको लिखेंगे। तो जो कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हूँ 3.75, 5 को हटाकर क्या करेंगे 7 जो कि ऑड नंबर है इसमें 1 एडिशन करके 3.8 लिखेंगे। सो here it is some questions for you. You have to do it and submit to me. Okay, you can message me on Bhasam or you can send the PDF file. Okay, so a very happy and good night to all of you. Thank you.